Good morning, dear friend. In today's video, I will discuss how we have to calculate the combined standard deviation, and I will explain by the example. Combined standard deviation. Firstly, I will write the formula how I have to calculate the combined standard deviation of two groups. If there are two groups, then we will use sigma 1, 2. That is, the formula is n1 sigma 1 square plus n2 sigma 2 square plus n1 d1 square plus n2 d2 square over n1 plus n2. Here sigma 1 2 is equal to known as the combined standard deviation. Then sigma 1 is known as the standard deviation of the first group. If we are considering two groups, and this is sigma 2 is known as the standard deviation of the second group. Then d1, what is known as the d1? d1 is known as the x1 bar minus x12 bar, that is combined mean, and d2 is equal to known as x2 bar minus x12 bar. If we have three groups, then formula will be n1 sigma 1 square, n2 sigma 2 square, n3 sigma 3 square, and n1 d1 square, n2 d2 square, and n3 d3 square over n1 plus n2 plus n3. Here we have three groups, so combined standard deviation will be like this. Again, d1 is equal to known as x1 bar minus x12 3 bar. This is known as the combined mean. d2 is equal to x2 bar minus x123 bar. Then d3 is equal to x3 bar minus x123 bar. This is known as the combined mean. So I will explain this concept by illustration, how we have to calculate the combined standard deviation. So illustration is two samples. Example is two samples of size 100 and 150 respectively have means 50 and 60, and standard deviation are 5 and 6. Find the mean and standard deviation of the combined sample size of size 250. So this is a statement, this is an illustration, and I will solve this like that. There are two samples of size 100 and 150. So size means number. N1 is equal to, I am taking N1 is equal to 100 and N2 is equal to 150. And their means are 50 and 60. So 50 is the mean of first samples. So I am denoting this as a x1 bar. x1 बार के साथ मैंने इसको डिनोट कर दिया. पहले सैंपल का मीन 50 है, दूसरे सैंपल का मीन कितना है 60. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 5 and 6. इसका मतलब पहले वाले का सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 है, दूसरे वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 6 है. तो आई हैव टू कैलकुलेट द combined standard deviation.
अब देखिए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैं फॉर्मूला लिखती हूँ पहले, n1 2, क्योंकि देयर आर 2 सैंपल्स ओनली, सो फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर, n2 सिग्मा 2 स्क्वायर, n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2। तो देखिए n1 ऑलरेडी हमारे पास है, सिग्मा 1 भी है, सिग्मा 2, सारे टर्म्स है हमारे पास, पर हमारे पास d1। सो फॉर्मूला फॉर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिस इज, तो इसका मतलब है सबसे पहले मेरे को d1 चाहिए। अब d1 का फॉर्मूला क्या होता है, x1 बार माइनस x1 2, क्योंकि 2 सैंपल्स है तो x1 2 बार मीन्स कंबाइंड मीन, और d2 कितना आएगा, d2 इज इक्वल टू x2 बार माइनस x1 2 बार। देखो x1 बार ऑलरेडी हमारे स्टेटमेंट में है, x2 बार भी हमारे पास ऑलरेडी स्टेटमेंट में है, हमारे पास है क्या नहीं, x1 2 बार। दिस इज अ कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार ओवर n1 प्लस n2। तो n1 देखिए कितना, n1 हमारे पास है 100, x1 बार है हमारे पास 50, n2 कितना है हमारे पास 150 एंड x2 बार है हमारे पास 60 ओवर n1 प्लस n2 डेट इज 250। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर आता है दिस इज 250, तो आई एम गेटिंग हियर 56। दैट मीन्स हमारे पास कंबाइंड मीन जो आ गया वो 56 आ गया। देन आई कैन इजिली फाइंड आउट d1 इज इक्वल टू x1 बार, x1 बार हमारे पास है 50 और x1 2 बार, ये हमारे पास कितना आ गया, दिस इज द 56, तो आंसर विल बी -6। नाउ आई विल कैलकुलेट d2, d2 कितना है हमारे पास, x2 बार, x2 बार की वैल्यू कितनी है 60 और x1 2 बार ये हमने अभी निकाला है वो कितना है 56, तो इसका आ गया 4। तो अब देखिए हमारे फॉर्मूले में जो चाहिए था, हमारे पास n1 सारे अननोन वेरिएबल्स हमारे पास थे, पर d1 d2 नहीं था, वो d1 d2 भी मैंने निकाल लिया। नाउ आई विल सॉल्व, कैलकुलेट द कंबाइंड स्टैंडर्ड। देखिए वो फॉर्मूला लगाऊंगी मैं सीधा, तो इसमें देखिए सिग्मा 1 2 दैट इज, अब वैल्यू क्या है हमारे पास, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2। अब देखिए हमने n1, अगर इसको स्टेटमेंट को देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है वैल्यू, n1 की वैल्यू हमारे पास है 100, दैट इज 100 इंटू सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 1 हमारे पास कितना है 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट इज n2 कितना है, n2 हमारे पास है 150 और सिग्मा 2 कितना है हमारे पास 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट इज अगेन n1 इज 100 एंड d1 स्क्वायर, d1 हमने कितना निकाला -6, इसका मीनिंग है -6 का स्क्वायर, और n2 हमारे पास है 150, फिर d2 का स्क्वायर, d2 कितना हमने निकाला 4, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2, n1 इज 100 एंड n2 इज 150। सो नाउ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की देखिए वैल्यू क्या आती है, दिस इज 2500, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 अगर इसको 100 के साथ करेंगे आई एम गेटिंग हियर 2500, देन 6 का स्क्वायर 36 को 150 के साथ करते हैं तो आई एम गेटिंग हियर 5400, देन आई एम गेटिंग 3600, देन आई एम गेटिंग 2400 ओवर 250। तो हमारे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आ जाता है 55.6, दैट इज 7.46। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये देखिए समय आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम, दैट इज स्टेटमेंट में हमें ऑलरेडी गिवन था 2 सैंपल्स थे, सैंपल साइज के कितने दिए थे 100 एंड 150, 100 और 150 सैंपल साइज दिए थे, उनके मीन्स भी दिए थे 50 एंड 60 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिए थे 5 एंड 6। तो मैंने कंबाइंड
स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना था। मैंने फर्स्ट सैंपल के साइज को मान लिया 1 सिंबल और सेकंड सैंपल जो था उसके लिए 2 सिंबल मान लिया। N1 सैंपल साइज दिया था 100 और 150, सो N1 100 एंड N2 इज 150। फिर उनका फर्स्ट वाले सैंपल का मीन 50 था, दूसरे वाले सैंपल का मीन कितना था 60। दैट मीन्स x1 बार इज इक्वल टू 50 एंड x2 बार इज इक्वल टू 60। फिर फर्स्ट सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन था 5 एंड सेकंड वाले का 6 था। तो मैंने पहले फॉर्मूला लिख लिया, उसके अकॉर्डिंगली आई हैव वर्क। तो डेट मीन्स देखा मैंने इसमें N1 सिग्मा 1 N1 सिग्मा 2 ये सारे वैल्यूज तो है, पर हमारे पास कौन सी वैल्यू नहीं है, D1 और D2। D1 का फॉर्मूला होता है x1 बार माइनस x12 बार, दैट इज कंबाइंड मीन, दिस इज नोन एज अ कंबाइंड मीन। ऐसे मैंने D2 का लिख लिया, तो मेरे को x12 बार चाहिए था, वो मैंने कैलकुलेट करा, दिस इज नोन एज अ कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार ओवर N1 प्लस N2। तो मैंने इसकी वैल्यूज पुट करी, क्योंकि N1 N2 x1 बार x2 बार हमारे पास वैल्यूज है, इसको सॉल्व करा तो 56 आ गया। तो इजिली आई कैन गेट D1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 माइनस 56 माइनस 6 आ गया। D2 की वैल्यू भी आ गई। तो अब ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास है, तो मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दी। इस फॉर्मूले में जब पुट करी तो इसकी कैलकुलेशन करी, उसको सॉल्व करके हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ जाता है 7.46 आ जाता है। दैट इज द आंसर। थैंक्स डियर फ्रेंड, please like, share and subscribe my channel, and don't forget to share with other also.